Good morning to all my dear students. Today we are continue chapter number 6 is computer networking. Okay, so previous class we have discussed about networking device. Okay, like hub, modem, switch, router, and NIC card. So student, networking device are used for transferring data and files and some resources. Okay. So today we have discussed about network topology, network, computer network, and network layout. Okay. So in network topology means arrangement of computers. Okay. On a different way. Bus topology, star topology, mass topology, tree topology, and hybrid topology. Okay. So student, we have discussed in videos there are 5 to 6 topologies. And computer network. So computer network, it is a collection of computers in different range. Okay, local area network, metropolitan area network, wireless area network, wide area network, WAN, and advantage and disadvantage of there are different kind of network. So and last one is network layout. So student, in this video we have discussed about network topology, computer network, and network layout. Okay, so student, one by one we have to start about network topology. Okay, so let's see. So student, this is the topic is topology. So what is the meaning of topology? The geometrical arrangement of computer resources, network devices along with communication channel is known as network structure or network topology. That means बहुत सारे devices और बहुत सारे resources को communication के purpose से एक दूसरे से joint करना network topologies कहलाता है. Topologies can be physical or logical both. Physical topologies, that means nodes and cable are connected in network, and logical topologies, the way information flow between different component. Okay, so there are different kind of topologies like bus topology, star topology, ring topology, mesh topology, tree topology, and last one is hybrid topology. That means there are 6 types of physical network topologies. Okay, so now next is student, we discuss the first topology, that is bus topology. So in this topology जो nodes होते हैं वो एक सिंगल कम्युनिकेशन मीडिया में जॉइंट होते हैं. दैट मीन्स नोड्स आर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडिया. देखिए आप इस डायग्राम में देख सकते हो एक सिंगल वायर में बहुत सारे जो नोड्स कंप्यूटर होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं. ओके, सो व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है इजी टू इंस्टॉल एंड मिनिमम केबल. दैट मीन्स कि इंस्टॉल करने में बहुत ही सिंपल है और इसमें मिनिमम केबल रिक्वायरमेंट होती है. और नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज. व्हाट इज फर्स्ट, डिफिकल्ट रिकनेक्शन. अगर इफ इन केस अगर बस टोपोलॉजी में किसी नोड अगर डैमेज हो जाता है तो इसको रिकनेक्शन करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं और प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. न्यू डिवाइसेस को हम इजीली इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं. ओके, और अगर इफ इन केस कोई भी अगर एक डिवाइसेस जो नोड डिवाइसेस है अगर वो फेल हो जाता है तो ओवरऑल सिस्टम पूरा फेल हो जाता है. ओके, सो दैट मीन्स बस टोपोलॉजी इजी टू इंस्टॉल बट मेंटेनेंस इज वेरी टफ. Now next topology is star topology. The star topology uses a separate cable for each node workstation. Star topology में सारे जो nodes कंप्यूटर होते हैं उनके लिए अलग अलग केबल की रिक्वायरमेंट होती है. The cable connect the node to a central device, typically hub. जो एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसको हम हब मान के चलते हैं उससे सारे पीसीज कनेक्ट होते हैं. ओके, सो एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी, लेस एक्सपेंसिव देन मैश टोपोलॉजी. ये बहुत सस्ती होती है, मीन्स कॉस्ट इज वेरी लो. इजी टू इंस्टॉल, इजी टू कॉन्फ़िगर. स्टार टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना उसको कॉन्फ़िगर करना बहुत ही सिंपल है. ओके, इफ वन लिंक फेल्स द नेटवर्क कैन स्टिल फंक्शन. इफ इन केस अगर कोई भी अगर एक नोड कंप्यूटर फेल हो जाता है तो बाकी के पीसीस पे फर्क नहीं पड़ता है.
ओके, जबकि बस टोपोलॉजी में सारा सिस्टम क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता था। डिसएडवांटेज क्या है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द हब। तो स्टार टोपोलॉजी का मेन डिसएडवांटेज है कि सारे पीसीस केवल जो मास्टर कंप्यूटर होता है, दैट मीन्स जो हब होता है, उस पर डिपेंड रहता है। Now next is ring topology. In ring topology, every computer is connected to the next computer in the ring form. जब हम PCs को एक रिंग और एक सर्कल के फॉर्म में सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उस टाइप के अरेंजमेंट को हम रिंग टोपोलॉजीज बोलते हैं। ओके, सो एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, इजी टू इंस्टॉल, इजी टू रिकॉन्फ़िगर, इजी टू डिटेक्ट अ प्रॉब्लम। रिंग टोपोलॉजी में हम प्रॉब्लम्स को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और द मेन डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजीज इज इफ इन केस वन पीसीज आर डैमेज, सो ओवरऑल सिस्टम इज डेड। दैट मीन्स अगर एक पीसी आपका फेल हो जाता है तो सारे पीसी भी वर्क नहीं कर देंगे और ओवरऑल सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। Now student, the mesh topology. In mesh topology, separate cable is used to connect each device to every other devices to the network, providing a straight communication path. mesh topology में क्या होता है, हर एक डिवाइस सारे डिवाइसेस से एक सेपरेट केबल के थ्रू जोड़ा जाता है। ओके, so what is the advantages of this topology? About traffic, since each link can carry its own data, none of our being sharing. मीन्स इसमें ट्रैफिक को अवॉइड किया जाता है बिकॉज सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। इफ वन लिंक ब्रेक्स द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क इज स्टिल फंक्शन। इफ इन केस अगर किसी पीसी का दूसरे पीसी से कनेक्शन कट हो जाता है, इफ इन केस, तो भी आपका पूरा फंक्शन वर्क करता रहता है। Easy to detect a problem in the network by discovering which devices is having problem. और इस मैश टोपोलॉजी में हम प्रॉब्लम्स को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस टोपोलॉजी? फर्स्ट वन इज लॉट ऑफ केबल आर नीडेड, बिकॉज इसमें हमें केबल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें हर एक डिवाइसेस को सारे अदर डिवाइसेस से कनेक्ट करना पड़ता है। टू मैनी केबल्स मीन्स टू मच कॉस्ट, दैट मीन्स कॉस्ट इज़ वेरी हाई बिकॉज बहुत सारा केबल आपको यूज़ करना पड़ेगा। टू मैनी केबल्स मीन्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, बहुत सारी केबल्स का यूज़ करेंगे तो उसका जो नेटवर्क बनेगा वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड बनता है। Now student, this is tree topology. In tree topology in which a central root node, that means tree, the top level of the hierarchy is connect to one or more other nodes. That means यहाँ पे एक central nodes बनता है जिसको हम main top level का nodes बोलते हैं और उसी से बहुत सारे pieces को tree के form में arrangement करते हैं। Okay, what is the advantages of mesh topology? Tree topology. It is scalable, easily fault identification and isolation. Disadvantage of this topology: maintenance of network may be an issue when the network span a great area. If the backbone fails, the entire network is crippled. If in case ट्री टोपोलॉजी में अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, अगर नोड कंप्यूटर आपका या फिर जो रूट नोड होता है वो अगर ख़राब हो गया तो बाकी के पीसीस भी वर्क नहीं करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप लास्ट वन इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। आप नेटवर्क में देख रहे होंगे, डायग्राम में देख रहे होंगे कि हाइब्रिड का मीन्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी। जब हम किसी दो टोपोलॉजी, स्टार हो गया, बस हो गया, ट्री हो गया, रिंग हो गया, अगर सारे दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी को हम अगर एक ही नेटवर्क में ज्वाइन करते हैं तो उस टाइप के अरेंजमेंट को हम हाइब्रिड टोपोलॉजीज बोलते हैं। ओके, सो use a combination of any two or more topologies in a such a way, that means this is called hybrid topologies. Now student, this is our next topic of this chapter, that is computer network. Computer network, it is a collection of different kind of computer for sharing some information on resources. So student, there are different kind of network, that is PAN, LAN, MAN and WAN. First one is PAN, that this is stand for personal area network. Second one is LAN, local area network. Third one is metropolitan area network, and fourth one is wide area
network. So student, what is the PAN? That means PAN network are those network which is communication between two or three more mobile devices or PCs for a personal purpose. Okay, second one is local area network. That means limited area within building. नेक्स्ट वन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. दैट मीन्स सिटी के बीच में अगर हमें नेटवर्क को अरेंज करना है तो उस टाइप के एरिया नेटवर्क को हम मेन बोलते हैं. ओके, वाइड एरिया नेटवर्क विद इन मल्टीपल सिटीज, स्टेट और कंट्रीज. जब हमें बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस पर हमें चीज़ों को जोड़ना है तो हम वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं. अब हम इसके आगे डिटेल में पढ़ेंगे सारे नेटवर्क्स के लिए. सो स्टूडेंट, फर्स्ट नेटवर्क इज पर्सनल एरिया नेटवर्क. दैट मीन्स जब हमें किसी सिंपल और पर्सनल पर्पस के हिसाब से अगर हमें किसी नेटवर्क को ज्वाइन करना है, उस टाइप के नेटवर्क को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं. दैट मीन्स कवर एन एरिया ऑफ फ्यू मीटर्स रेडियस, सेट अप यूजिंग गाइडेड मीडिया, यूएसबी केबल, अनगाइडेड मीडिया लाइक ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाय अ सिंगल पर्सन. ओके, फॉर स्टूडेंट, आप अगर यूएसबी केबल को ज्वाइन करते हैं आप अपने लैपटॉप्स में तो उस टाइप के नेटवर्क को आप पर्सनल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अ नेटवर्क ऑफ डिवाइस सच इज कंप्यूटर, फोन, MP3, MP4 प्लेयर, कैमरा, etc. ट्रांसफरिंग सॉन्ग फ्रॉम वन सेल टू अनदर. ओके, जब हम किसी डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, ओके, दैट मीन्स यूएसबी केबल को ज्वाइन कर या फिर आप पेन ड्राइव को यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो इस टाइप के नेटवर्क को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कंप्यूटर नेटवर्क. दिस इज सेकंड लोकल एरिया नेटवर्क. इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट topic for exam point of view. LAN are the most frequently used discrete network. It is one of the most common, one of simplest types of network. It is designed for small physical area such as office. जब हम ऑफिस के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको जब हम एक ही रिसोर्सेज के थ्रू ज्वाइन करते हैं या फिर बिल्डिंग्स में बहुत सारे पीसीस को हम ज्वाइन करते हैं तो उस टाइप के नेटवर्क को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं. Any of different types of topologies can be used to design LAN like star, ring, bus and tree topologies. मतलब LAN नेटवर्क के लिए हम स्टार, रिंग, बस, ट्री टॉपोलॉजीज में से किसी भी अरेंजमेंट को यूज़ कर सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LAN. फर्स्ट वन इज प्राइवेट नेटवर्क, मीन्स नो नीड फॉर रेगुलेटरी कंट्रोल. इसमें कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा एक नया ज़रूरत नहीं पड़ती है. ऑपरेटेड रिलेटिवली हाई स्पीड. LAN हमेशा हाई स्पीड प्रोवाइड कराता है. ईथरनेट, टोकन रिंग, CTC टाइप मीडिया एक्सेस कंट्रोल आर यूज्ड. ईथरनेट केबल का यूज़ कर सकते हैं हम इसमें. कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ सिंगल बिल्डिंग, ब्लॉक और कैंपस. दैट मीन्स इस LAN का मीन्स आप सिंगल बिल्डिंग में बहुत सारे पीसीस को ज्वाइंट कर सकते हैं. ओके, और एक ही कैंपस में. ओके, Now student, we have discussed about what is the advantages of LAN. तो एडवांटेज में फर्स्ट रिसोर्स शेयरिंग. जब हम LAN का यूज़ करते हैं तो बहुत सारे पीसी एक साथ जुड़े होते हैं तो हम रिसोर्सेज को इजीली शेयर कर सकते हैं. आपने देखा होगा आप कैफ़े पे जाते हैं बहुत सारे पीसी हुए होते हैं बट जो प्रिंटर होता है वो एक ही वर्क करता है. ओके, बिकॉज उसने अपना प्रिंटर इज रिसोर्स को शेयर किया है. सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शेयरिंग, ईजिली सारे सॉफ्टवेयर शेयर हो जाते हैं, है ना. चीप कम्युनिकेशन, इजी सेंट्रलाइज डेटा सिक्योरिटी, इंटरनेट शेयरिंग मीन्स ईच एंड एवरी थिंग्स आर इजली शेयरिंग इन LAN नेटवर्क. डिसएडवांटेज, हाई सेटअप कॉस्ट. अगर हम इनकेस बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो कॉस्ट बहुत ही लगेगा. प्राइवेसी वायोलेशन. LAN में अगर बहुत सारे पीसीस कनेक्ट होते हैं तो कभी कभी हैकिंग होने के चांसेस हो जाते हैं. Now next network is metropolitan area network. दैट मीन्स जब हमें बहुत सारे किलोमीटर्स या 1000 किलोमीटर्स के बीच में अगर हमें अरेंजमेंट करना है तो उस टाइप के नेटवर्क को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल अ नेटवर्क ऑफ स्कूल और बैंक और गवर्नमेंट ऑफिसेज ETC विद इन अ सिटी. ओके, जब हम अगर बहुत सारे स्कूल्स को अगर एक साथ ज्वाइन करना है, बहुत सारे बैंक को एक साथ मैनेज करना है तो हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं. ओके, now next network is wide area
नेटवर्क। जैसा कि आप लोग वर्ड देख रहे हैं वाइड, वाइड का मीन्स है कि लॉन्गर डिस्टेंस। ओके, दैट मीन्स जहाँ हमें स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री, ओके, इस टाइप के नेटवर्क को अरेंजमेंट करना है तो हम उस टाइप के अरेंजमेंट को हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ WAN? फर्स्ट वन इज कवर लार्ज डिस्टेंस। ओके, दैट मीन्स इस टाइप के नेटवर्क में हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को कवर इजिली कर सकते हैं। Communication media like satellite, public telephone network, etc. router are used establish connection. That means हम सैटेलाइट का यूज़ कर सकते हैं, इसमें पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क का यूज़ हम WAN में कर सकते हैं। ओके, जो आजकल जो सेल फोन यूज़ हो रहे हैं उस टाइप के नेटवर्क को हम WAN बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, अ नेटवर्क ऑफ ATM, बैंक, नेशनल गवर्नमेंट ऑफिस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन spread over a country covering many continents. This type of network is known as wide area network. Now student, next topic is advantages of wide area network. फर्स्ट वन इज लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस कैन कनेक्ट ऑन वन नेटवर्क। जब हमें एक ही नेटवर्क में बहुत सारे बिजनेस को सेटअप करना है तो हम WAN का यूज़ करते हैं। शेयर सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज इजिली, मैसेज कैन बी सेंड वेरी क्विकली टू वाइड रेंज ऑफ नोड्स। बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस पीसीज को हमें अगर मैसेज सेंड करना है, जैसे आप इंडिया बैठे हो और ऑस्ट्रेलिया में आपको कोई मैसेज सेंड करना है, तो उस टाइप के नेटवर्क, किस टाइप के नेटवर्क का यूज़ करेंगे हम? WAN का यूज़ करेंगे। हार्डवेयर डिवाइसेस कैन बी शेयर्ड, दैट मीन्स WAN में हम हार्डवेयर डिवाइसेस को भी इजीली शेयर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, नीड अ गुड फायरवॉल। ओके, दैट मीन्स हमें एक अच्छी सिक्योरिटी को यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज कोई भी आपका सिस्टम हैक और डैमेज कर सकता है। सेटिंग अप अ नेटवर्क कैन बी एक्सपेंसिव, ओके, बट इट इज़ ऑल्सो स्लो। तो इस टाइप के नेटवर्क में एक्सपेंसिव मीन्स ये कॉस्टली बहुत पड़ता है और वर्किंग भी कभी कभी स्लो कर सकता है। मेंटेनिंग अ नेटवर्क इज़ फुल टाइम जॉब। वाइड एरिया नेटवर्क को मेंटेन करना बहुत टफ काम है। नाउ नेक्स्ट इज सिक्योरिटी इज अ मेजर इशूज व्हेन एनी डिफरेंट पीपल हैव द एबिलिटी टू यूज इन्फॉर्मेशन। ओके, दैट मीन्स सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से वाइड एरिया नेटवर्क कभी कभी फेल हो जाता है, बिकॉज कोई भी पर्सन इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। नाउ स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क लेआउट। Network layout, that means design or arrangement of network wings and nodes to be laid out is known as network layout. Okay, that means arrangement of network design. Okay, first a good network layout provide the following features. बहुत सारे features network layout provide कराता है। अगर आपका arrangement अच्छा होगा, design अच्छा होगा तो आपका आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन स्पीड, स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी अगर आपका नेटवर्क बहुत ही अच्छा है। फाइल शेयरिंग इजिली, ओके, बैकअप एंड रोल बैक इज ऑल्सो ईजी। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग, ओके, अगर नेटवर्क अच्छा है तो आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इजीली शेयर कर सकते हैं। अगर आपका नेटवर्क बहुत ही गुड एंड सिक्योर है तो आप सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ही अच्छा वर्क हो सकता है। स्केलेबिलिटी एंड रियलाइबिलिटी, दैट मीन्स गुड नेटवर्क लेआउट इट इज़ स्केलेबल, मतलब आप किसी भी स्केल पे वर्क कर सकते हैं, एंड रियलाइबिलिटी मतलब रोबस्टनेस उसमें हो सकती है। नाउ लास्ट वन टॉपिक इफ दिस चैप्टर इज हाउ टू डिसाइड नेटवर्क लेआउट। स्टूडेंट, आपने अभी लास्ट PDF में देखा होगा कि लेआउट क्या होता है। लेआउट मीन्स होता है डिजाइनिंग। सो हाउ टू डिसाइड नेटवर्क, मतलब किस टाइप का लेआउट हमें यूज़ करना है। द नेटवर्क लेआउट कैन बी बेस्ड विच प्रोवाइड लेस इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एज वेल एज इजी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। ओके, हमें डिसाइड करना पड़ेगा किसका कॉस्ट कम लग रहा है और जो ईजिली मेंटेन हो सके। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन इट इज़ प्रॉपरली डिजाइन। इफ इन केस अगर हम अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं with shortest cable length and fulfill all these network requirements, so that means हम उस network layout का यूज़ कर सकते हैं। हमें वो नेटवर्क लेआउट का यूज़ करना चाहिए जिसमें इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस बहुत ही सिंपल तरीके से हो सके और बहुत ही लो कॉस्ट पर उसको हम वर्किंग करा सकें। उससे आपके आउटपुट आने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं और सिक्योरिटी पर्पज के थ्रू भी आप बहुत सेफ रह सकते हैं, बिकॉज आपका नेटवर्क अगर गुड है तो। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज फिनिश, दिस इज सेकंड चैप्टर इज फिनिश। थैंक यू सो मच।